ठीक है ना. So that is equal to log of x into y. These are some basic properties. Suppose I'll Means take in log. basic mathematics you have taught about logarithm. No. I have not taught about logarithm. I just taught about what is logarithm function and what is its differential. I simply taught, okay, d by dx logarithmic function. If log is a function of x, so d by dx of log x is equal to 1 by x. Rest of the properties of logarithm that you will study in mathematics. Okay, This is sir. what I'm telling today. These are some properties of logarithm that I know. These are useful in mathematics. Basically, these properties are useful in physics. But the complete logarithm you will study in mathematics. Right? I'll tell you some basic things now. Like log x minus log y. Since you are asking, so I am telling. Log x minus log y is log of x by y. Right? And there is another property, that is, if I take log x square, right? So log x square is 2 log x. Log x square can be written as 2 log x. Or instead of x square, let me not take it as x square. I'll take x to the power n. Suppose I'll take log x to the power n. That is equal to n log x. So these are some basic properties of logarithmic operation. Everyone can write this actually. Right? And rest all properties of logarithm you will study in mathematics. Okay, sir. ये है ना, ये सब जो प्रॉपर्टीज है ना, whatever these properties that I am writing, these properties also sometimes we use in physics, and by that time you would have learned everything in logarithm in mathematics. है ना? तब तक जब तक जरूरत पड़ेगा फिजिक्स में, तब तक मैथ्स में खत्म हो गया होगा. ठीक है ना. तो जो फिजिक्स में जरूरी था बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाने के लिए कैलकुलस में, मुझे फॉर्मूला जरूरी था, तो ये मैंने बता दिया था. Okay, sir. Okay. Okay. So I'm erasing it. If you have written, if you have noted down, then I'm erasing it. Right, students? So I think almost everyone joined. Except, yes. Rajeshri, Vera is not there. Rajeshri. Deepika, can you contact Rajeshri? And I think Nikita didn't join. Give me a minute. Give me a minute. Right. So let me erase this now. So let us start. Now integration. So today's new topic is integration. So what is integration? Right. So basic meaning of integration is बेसिक मीनिंग जो है इंटीग्रेशन का,
है ना, is adding small things, continuously to form a big system or big thing. For example, like we say that बूंद बूंद से बनता है ना सागर, ठीक है ना, बूंद बूंद के पानी से है ना बनता है सागर, ठीक है ना. सो ओशन इज मेड अप ऑफ मिलियन बिलियंस ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है ना. तो छोटा 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 ड्रॉप लेकर है ना पानी का, ठीक है ना, तो ओशन बना है, सागर बना है, ठीक है ना, समंदर बना है, ठीक है. तो इट इज समथिंग लाइक दैट, है ना. इंटीग्रेशन इज लाइक एडिंग स्मॉल थिंग्स टू गेट अ बिग थिंग, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, आई विल से व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन. तो ये लाइन है ना, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. So can I say that straight line is integration of infinite points? है ना? So basically what I can say that a straight line, it is an integration of, जो straight line है अगर छोटे छोटे points को हम जोड़ते जाएं, ठीक है ना, तो वहां से बनेगा undefined number of points, infinite points. Undefined number of points. समझ में आया ना, ठीक है. जैसे कि ये ऐसे वन बाय वन हम ज्वाइन करते गए, ठीक है ना. तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ के बनेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनडिफाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना. इंटीग्रेशन can also be defined as, can also be defined as, है ना, कंटिन्यूअस एडिशन. कंटिन्यूअस एडिशन मतलब जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन जो अब है ना, कितने पॉइंट्स कंबाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनता है ना, वो तो अनगिनत है ना, वो तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, ठीक है ना. मतलब हमको तो पॉइंट्स जो है वो कंटिन्यूअसली ऐड करना पड़ेगा ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना. बिल्कुल पॉइंट्स के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, है ना, और कंटिन्यूअसली हम ऐड करते जाएंगे. और कितना बार हमको ऐड करना पड़ेगा पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, या फिर कितने पॉइंट्स हमको कंटिन्यूअसली है ना जोड़ना पड़ेगा एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, वो भी अनकाउंटेबल है ना, अनडिफाइंड है वो, ठीक है ना. सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज कंटिन्यूअस एडिशन, ठीक है ना. तो कंटिन्यूअस एडिशन डिस्क्रीट एडिशन क्या है ना. कंटिन्यूअस एडिशन डिस्क्रीट एडिशन का मतलब है, डिस्क्रीट एडिशन में है ना, डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एडिशन, डिस्क्रीट एडिशन है, डिस्क्रीट एडिशन का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स addition has to be performed is known. तो कितना बार हमको ऐड करना पड़ेगा वो पता रहता है डिस्क्रीट एडिशन में, है ना. कंटिन्यूअस एडिशन इज समथिंग लाइक,
है ना, नंबर ऑफ टाइम्स addition has to be performed is unknown. ठीक है ना। तो एक तो होता है डिस्क्रीट एडिशन, डिस्क्रीट एडिशन में है ना कितना बार ऐड करना पड़ेगा, है ना, वो हमें पता रहता है, इट इज नोन क्वांटिटी। बट कंटिन्यूअस एडिशन में कितना बार हमको ऐड करना पड़ता है, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू ऐड, राइट, आई मीन कंटिन्यूअसली। ठीक है ना, कंटिन्यूअस एडिशन में, ठीक है, वो हमें पता नहीं रहता है। जैसे कि समंदर पानी से बना है ना, बूंद बूंद पानी से बना है, लेकिन कितने बूंद, है ना, कितने बूंद पानी हमको, है ना, लेना पड़ेगा, हमको कंटिन्यूअसली ऐड करना पड़ेगा, है ना, एक एक के बाद एक बूंद, एक के बाद एक बूंद, तब जाके ना समंदर बनेगा। लेकिन कितना बार हमको ऐड करना पड़ेगा एक एक बूंद, है ना, वो हमें पता नहीं है, वो हमें कंटिन्यूअसली करते रहना है, तब जाके समंदर बनेगा। ठीक है ना। डिस्क्रीट एडिशन में क्या है, वो पता रहता है ना कितने बूंद पानी से, है ना। ठीक है। मान लो अगर हम एक गिलास पानी में भी एक गिलास पानी में भी हम ना ड्रॉप्स ऐड करें, तो हम तब भी काउंट कर पाएंगे ना कितने ड्रॉप से एक गिलास पानी बना है। ठीक है ना, इट्स स्टिल इट इज अकाउंटेबल ना। बट व्हेन वी गो टू बिग एंटिटी, बहुत बड़ा एंटिटी में जब चले जाते हैं, ठीक है ना, तब है ना कितना बार ऐड करना पड़ता है वो हमको पता नहीं रहता है। ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक बिगिनिंग, है ना, बेसिक आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन में तुमको दे रहा हूँ ना, जो इंटीग्रेशन सीखने के लिए मैथमेटिकली जो बेसिक आइडियाज होने चाहिए ना, ये मैंने तुमको बता दिया। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। क्लियर ना, नोट कर लिया? यस सर। ओके, वेरी गुड बेटा। सदा बहुत फास्ट रहता है। ओके, कोई बात नहीं। तुम गाँव गए ही क्यों बोलो मुझे, है ना। व्हाई डिड यू गो टू विलेज? ठीक है ना। ओके, मजा कर रहा था बेटा, है ना, डोंट टेक इट सीरियसली। ठीक है। बस मेरा यही कंसर्न है ना, मतलब एक्चुअली गाँव वाँव चले जाने से क्या होता है ना, मतलब वो नेटवर्क वेटवर्क नहीं रहता है ना, पढ़ाई का नुकसान हो जाता है। ओके, तो है ना बेटा, चलो। तो हाँ, इंटीग्रेशन क्या है मैथमेटिकली, हम सीखने की कोशिश करते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, है ना। तो मान लो कि आई एम टेकिंग कर्व लाइक दिस। तो मान लो कि ये कर्व है, ठीक है ना। सो दिस इज अ कर्व, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस बेसिकली इज, राइट, सपोज आई वांट टू फाइंड आउट, मान लो आई टेक दिस इज y एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। बेसिकली y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड आई हैव प्लॉटेड y एज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। तो मैंने प्लॉट किया हुआ है ना, y कैसे वैरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज व्हाट आई प्लॉटेड हियर, है ना। सो बेसिकली y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना बच्चों। तो सपोज देयर आर टू कोऑर्डिनेट्स, तो मान लो कि दो कोऑर्डिनेट हैं, तो मान लो कि दो कोऑर्डिनेट है, एक है x1, दूसरा है x1 नहीं, हाँ, मतलब x कोऑर्डिनेट है। लेट्स से मान लो कि आई एम टेकिंग दिस एज x इक्वल टू a,
I'm taking one as x equal to a, the other one as x equal to b. एक को मैंने लिया x equal to a, दूसरे को मैंने लिया x equal to b, ठीक है ना. Now I want to find out the area under the curve between x equal to a to x equal to b, है ना. So in the graph as shown, है ना, our aim is to calculate in the graph as shown. Our aim is to calculate, है ना, the basically yes, our aim is to calculate the area under the graph. तो बेसिकली हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ये ग्राफ के अंदर जो है ना एरिया है वो हमें निकालना है, ठीक है ना. तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या है बेसिकली, कि मान लो कंटिन्यूअस, तो मान लो कि, है ना, उसको एरिया कैलकुलेट करने के लिए, है ना, अब मैं क्या करूंगा, इसको मान लो जनरली अगर थोड़ा आइडिया लगाएं तो हम यहाँ पे कंटिन्यूअसली कुछ रेक्टेंगुलर कॉलम्स ले सकते हैं, उसके अंडर का एरिया निकाल सकते हैं पहले, है ना. जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तुमको, है ना, तो मान लो कि मैंने ऑफ इक्वल इंटरवल्स, let's say I started dividing this whole graph into equal intervals by taking rectangular columns, है ना. So let's say I'll divide this into n intervals, ठीक है ना. So suppose we divide into n intervals, है ना. So पहले हमने क्या किया, we first divide, है ना. तो हम बेसिकली हम यहाँ पे क्या करें, we first divide the space between, divide the space between, we first divide the space between x equal to a and x equal to b into n equal intervals, where width of each interval is delta x. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, है ना. तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि पूरा एक एक इंटरवल को मैं पूरा डिवाइड कर रहा हूँ ना, पूरा एरिया को मैंने डिवाइड किया इनटू इक्वल इंटरवल्स. तो मान लो ये डेल्टा एक्स है. सपोज आई डिवाइड दिस इनटू इक्वल इंटरवल्स, है ना, वेयर width of each interval is delta x. तो मान लो हर इंटरवल का जो width है वो डेल्टा x है, ठीक है ना, इक्वल इंटरवल्स, है ना. एंड लेट्स से देयर आर इंटरवल्स. सो टोटल इंटरवल कितना है, टोटल इंटरवल का लेंथ कितना है, टोटल इंटरवल का लेंथ कितना है, टोटल इंटरवल का लेंथ है ना, b माइनस ए,
तो टोटल इंटरवल का लेंथ कितना आ रहा है यहाँ पे? टोटल इंटरवल का लेंथ यहाँ पे आ रहा है n डेल्टा x. तो दिस इज द टोटल, है ना, इंटर, बिकॉज the whole interval between a and b, x equal to a and x equal to b, है ना, I have divided into n number of intervals with equal width, where width of each interval is same, that is delta x. तो डेल्टा x इंटरवल्स वाले, है ना, width लेकर मैंने n नंबर ऑफ इंटरवल्स में पूरा पार्ट को डिवाइड कर लिया. तो टोटल जो इंटरवल है x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, पूरा लेंथ कितना होगा? n डेल्टा x, है ना, which is equal to b minus a, है ना. तो आई कैन से दैट, है ना, implies b minus a is equal to n डेल्टा x. और डेल्टा x कितना होगा? टोटल विड्थ इज b माइनस a डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स n. ठीक है ना बच्चों, ये समझ में आया यहां तक? ठीक है ना, यहां तक समझ में आएगा ना बच्चों? Yes, sir. इज दिस क्लियर? ओके. तो अभी ठीक है ना, तो अभी हम क्या करेंगे कि, है ना, पहले इसका y कोऑर्डिनेट्स देख लेंगे, है ना. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो फॉर x इक्वल टू a, y का वैल्यू क्या होगा? सपोज आई एम सेइंग दैट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन फॉर x इक्वल टू a, y क्या होगा? y विल बी इक्वल टू एफ ऑफ a. तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना है? एफ ऑफ a, है ना. इसका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका नेक्स्ट नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेक्स्ट कोऑर्डिनेट मान लो वो हो जाएगा a प्लस डेल्टा x. तो वहां पे y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो a है, और पहला इंटरवल का लेंथ कितना है? डेल्टा x. तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कितना आएगा a का? a प्लस डेल्टा x. मतलब नेक्स्ट इंटरवल का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का कितना आएगा? a प्लस डेल्टा x. तो y कितना होगा? y विल बी इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस डेल्टा x, है ना. ठीक है. सो नेक्स्ट पार्ट ये है कि टू कैलकुलेट, है ना, द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना. तो ये जो एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए, है ना, to calculate the area under the curve y equal to f of x, to calculate the area under the curve y equal to f of x, है ना, we add the area of each rectangular column. We add the area of each rectangular column. ठीक है ना बच्चों? ठीक है. अच्छा, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ so that I can use it in my next slide. Okay. अच्छा, यहाँ तक लिख लिया बच्चों तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना. ओके.
आई थिंक एक व्हाइट बोर्ड से दूसरे व्हाइट बोर्ड में कॉपी पेस्ट ऑप्शन नहीं है। अरे तो यहाँ पे फिर बनाना पड़ेगा। चलो बच्चों, है ना, मैं बना लेता हूँ फिर से। तो हमने क्या लिया था, ये x इक्वल टू a लिया था, x इक्वल टू b लिया था, इसको इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड किया फटाफट। ठीक है ना। तो मान लो कि ये है a प्लस डेल्टा एक्स, फिर ये क्या होगा, a प्लस टू डेल्टा एक्स, कंटिन्यूसली ना ऐसे होगा। ये x, तो ये है y, ठीक है ना। तो ये है f ऑफ a। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो है, नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट विल बी f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स एंड सो ऑन, ठीक है ना। वैसे y कोऑर्डिनेट ऐड होता जाएगा ना। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है ना, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द रेक्टेंगुलर कॉलम्स, है ना। तो एरिया, मैं क्या बोलूंगी, एरिया अंडर द ग्राफ, है ना, इक्वल टू सम ऑफ एरिया of all rectangular columns between x equal to a, है ना, and x equal to b। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ देखो, है ना, तो a, so implies एरिया इक्वल टू, अब पहला रेक्टेंगुलर कॉलम का लेंथ कितना है, f ऑफ a, और विड्थ कितना है, विड्थ है डेल्टा x, है कि नहीं। तो पहले वाले का है f ऑफ a इंटू डेल्टा एक्स, प्लस दूसरे वाले का, दूसरे वाले का हाइट कितना है, f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स है ना, लेंथ इज f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तीसरे का क्या होगा, उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, उसका y कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ a प्लस टू डेल्टा एक्स, ठीक है ना। सो मान लो ये 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ये तीन ऐसे कंटिन्यू करते हुए ये nth रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है ना। तो प्लस f ऑफ a प्लस टू डेल्टा एक्स, है ना, f ऑफ a प्लस टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, है ना। ये फर्स्ट रेक्टेंगुलर कॉलम का है एरिया, ये सेकेंड रेक्टेंगुलर कॉलम का एरिया है, मतलब ये फर्स्ट का है,
ये है सेकंड का, ये है थर्ड रेक्टेंगुलर कॉलम का, है ना, प्लस सो ऑन। nth रेक्टेंगुलर कॉलम का एरिया क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस n माइनस वन डेल्टा एक्स होल इंटू डेल्टा एक्स, यही होगा, है ना। ये हो जाएगा nth रेक्टेंगुलर कॉलम का एरिया। आ रहा है कि नहीं बच्चों, ये समझ में आ गया? इज दिस क्लियर, है ना बच्चों, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब लोग क्लियर हैं? फटाफट रिप्लाई। Yes, sir. सब लोग क्लियर ना? आस्था बेटा Sir, it is clear. क्लियर? श्रुति ओके, श्रुति ऑल्सो क्लियर। संभावी, प्राजक्ता, खुशी, जैस्मिन, Yes, आयुष sir. सिन्हा, अनीशा, ठीक है ना, तो सब लोग क्लियर है ना। इम्प्लाइज इसको मैं लिखूंगा अभी एरिया इक्वल टू, थोड़ा शॉर्ट में अगर लिखूंगा, मतलब ये पूरा सम ले रहा हूँ ना, एक के बाद एक का एडिशन ले रहा हूँ ना, एक एक एरिया का एडिशन ले रहा हूँ, एडिशन मतलब सम, ठीक है ना। तो मैं ये साइन यूज करूंगा, ये क्या होता है, समेशन साइन। मतलब जब हम ढेर सारे सम्स लेते हैं ना, तो उसको शॉर्ट में ये साइन में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं ले लिया समेशन साइन, समेशन साइन एफ ऑफ यहाँ पे ए प्लस, है ना, ये जो यहाँ पे 0 डेल्टा एक्स, यहाँ पे 1 डेल्टा एक्स है, यहाँ पे 2 डेल्टा एक्स है, यहाँ पे n माइनस वन डेल्टा एक्स है, तो मैं इसको ले जाऊंगा आई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। समेशन साइन में ऐसे लिखते हैं, लेकिन हाँ मैंने आई एक वेरिएबल यूज किया, तो ये जो आई जो वेरिएबल है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। यहाँ पे क्या है, ये पहले वाले टर्म में ये है a प्लस 0 डेल्टा एक्स, मतलब a इज इक्वल टू ए प्लस 0 डेल्टा एक्स, और यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन डेल्टा एक्स है। तो i क्या है, i इज द कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा एक्स इन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन में i इज द कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, और कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, n माइनस वन। तो आई हैव टू, मुझे ना इसका रेंज, मतलब है ना, मतलब मुझे इसका रेंज जो है ना, आई हैव टू मेंशन द रेंज आल्सो, है ना। सो आई इज इक्वल टू, है ना, आई हैव टू रिप्रेजेंट द रेंज आल्सो हियर, है ना, इन माय समेशन साइन। सो आई इज इक्वल टू 0 टू n माइनस वन, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू समेशन साइन के नीचे लिखा जाता है, मैक्सिमम वैल्यू समेशन साइन के बाहर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज द, है ना, शॉर्ट फॉर्म ऑफ समेशन, ठीक है ना। तो ये एरिया है, ठीक है। पर बच्चों, है ना, मैंने ये भी बोला था कि डेल्टा एक्स जो है ना, हमने, मुझे ये भी मैंने बोला था कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए बाय एन, क्योंकि पूरा जो बी और ए के बीच का जो इंटरवल है बी माइनस ए हैज बीन डिवाइडेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल्स, n equal number of intervals. So delta x, so length of single interval will be b minus a whole divided by n. Length of single interval will be b minus a whole divided by n, ठीक है ना। So delta x is equal to b minus a whole divided by n, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो आप देखो, लेकिन ये जो एरिया अंडर ग्राफ निकाला हो ना, मुझे मेरे पास कुछ एरर है। देखो जैसे कि ये वाला पार्ट है, इसका एरिया नहीं आ रहा है, ये एक छोटा पार्ट है, इसका एरिया नहीं आ रहा है, तो इसमें कुछ एरर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो छूट जा रहा है कि नहीं। जहां जहां पे मैंने गोल 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 सर्कल ड्रॉ किया ना, उस पार्ट का जो छोटा छोटा एरिया है वो छूट गया। मतलब हमने तो रेक्टेंगुलर कॉलम्स का एरिया ऐड करके ग्राफ का एरिया निकाला, लेकिन वो एग्जैक्ट एरिया नहीं है ना, उसमें थोड़ा एरर है ना, उसमें थोड़ा एरर है, वो एक्चुअल आंसर से, है ना, उसका हमारा आंसर में थोड़ा डेविएशन है।
एक्चुअल आंसर से हमारा आंसर थोड़ा कम है। एक्चुअल आंसर जो है थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, है ना। मतलब हमारा जो गिनती है एरिया का वो थोड़ा कम पड़ गया, मतलब जितना आना चाहिए था उससे कम आ रहा है ना। क्योंकि ये जो तरीका है रेक्टेंगुलर कॉलम वाला तरीका, यहाँ से है ना कुछ कुछ पार्ट जो है वो छूट रहा है कि नहीं, है ना। ऊपर में हर रेक्टेंगुलर कॉलम के ऊपर का जो छोटा सा जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है वो पार्ट का एरिया छूट रहा है, ठीक है। तो अभी उसके लिए क्या करेंगे, अगर मान लो मैं नंबर ऑफ इंटरवल्स को बढ़ा दूं, अगर मैंने नंबर ऑफ इंटरवल्स को इंक्रीज कर लिया ऐसे, मैंने हर इंटरवल को फिर से 2 इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लिया। आई हैव डिवाइडेड एवरी इंटरवल इनटू 2 इक्वल इंटरवल्स नाउ। अब मैं क्या करूंगा, हर इंटरवल को 2 इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लूंगा ऐसे, है ना। क्या इससे मेरा एरर कम हो जाएगा? ऑब्वियसली कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट आ गया, तो ये एडिशनल एरिया आ रहा है, तो है ना। तो पहले वाले जितना एरिया छूट रहा है उसमें से हमने कुछ एरिया कवर कर लिया, पहले जितना छूट रहा था वहां से कवर हो गया। फिर ये रेक्टेंगुलर में कुछ एडिशनल एरिया आ गया, तो यहाँ पे और ना जो पार्ट में जो एरिया में छूट रहा था पार्ट में एरिया वो थोड़ा कम हो गया। तो ऐसे क्या हो रहा है कि है ना, रेक्टेंगुलर पार्ट में अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को हम बढ़ा दें तो रेक्टेंगुलर पार्ट के अंदर का एरिया इंक्रीज कर गया, और जहां से एरिया छूट रहा था वो पार्ट का एरिया डिक्रीज कर गया, है कि नहीं। जहां से एरिया छूट रहा था वो पार्ट का एरिया डिक्रीज कर गया। अब देखो, जो हमारा छूटा हुआ एरिया है, जितना हमने मिस कर लिया था एरिया, जो एरिया हमारे कैलकुलेशन में नहीं था, उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज कर गया, मतलब हमारा एक्यूरेसी और बढ़ गया। अभी भी एरर है लेकिन एरर रिड्यूस हो गया और एक्यूरेसी इंक्रीज हो गया, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आई कैन से दैट आई गो टू अनदर व्हाइट बोर्ड, है ना। नो नाउ बेसिकली आई कैन से दैट, है ना, बेसिकली आई कैन से दैट बाय, है ना। तो बेसिकली आई कैन से दैट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ, तो बेसिकली हम मैं ये बोल सकता हूं कि बाय इंक्रीजिंग the number of rectangular columns, by increasing the number of rectangular columns, है ना, the area, है ना, the error in the evaluation of, in the calculation of area, the error in the calculation of area is decreasing and the accuracy is increasing। एरर डिक्रीज कर रहा है और एक्यूरेसी इंक्रीज कर रहा है। एरर इज, है ना, डिक्रीजिंग एंड द एक्यूरेसी इज इंक्रीजिंग। एंड द एक्यूरेसी इज इंक्रीजिंग। एरर इज डिक्रीजिंग एंड एक्यूरेसी इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना। देखो, जब मैंने नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया कॉलम्स बढ़ा दिया तो ये एरिया अंडर द ग्राफ में जितना एरिया आना चाहिए वो इंक्रीज हो रहा है, और जो एरिया मिसिंग एरिया था पार्ट का एरिया ना वो डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा एक्यूरेसी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। ठीक है। तो बेसिकली, अब बेसिकली है ना, हमारा जो एक्यूरेसी है, अभी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमको ये पता चल गया
नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज करने से, है ना. we now got to know that, है ना, by increasing the number of rectangles our error is decreasing and our accuracy is increasing. Now then what should we do so that we can cover up all the area under the graph? What should we basically do so that we can cover up all the area under the graph, है ना. तो ग्राफ के अंदर सारा का सारा एरिया कवर अप करने के लिए, है ना, what I should do is I should take undefinite number of intervals, है ना. So if I take, if n tends to infinity, then delta x tends to 0. अगर नंबर ऑफ इंटरवल्स जो है एक एक लाइन बन गया बिल्कुल, है ना, मतलब है ना, फटा मतलब एक इंटरवल था, फिर है ना और एक इंटरवल ले लिया, फिर और एक इंटरवल ले लिया, फिर और एक इंटरवल ले लिया, ठीक है ना. ऐसे इंटरवल्स अगर मैं बढ़ाते जाऊंगा ना, अगर अनडिफाइंड नंबर ऑफ इंटरवल्स हो गए, अनगिनत इंटरवल्स हो गए, डेल्टा एक्स विल टेंड टू 0. मतलब हर एक जो रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो बिल्कुल है ना 0 के बराबर हो जाएगा. जितना है ना कोई भी रेक्टेंगुलर कॉलम का विड्थ जो है जितना ज्यादा डिक्रीज करेगा उतना ज्यादा एरिया हम कवर करेंगे, उतना ज्यादा रेक्टेंगल्स आ जाएगा, है ना, और उतना ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा. मतलब ये जो बीच के गैप है ना ये सब सारे के सारे कवर हो रहे हैं. अगर मान लो मैं ऐसे लाइन खींचते जाऊंगा, एक लाइन में डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स तो मतलब बहुत ही कम होगा, नियरली इक्वल टू 0. एक एक लाइन में, है ना, ऐसे एक एक लाइन जोड़ते जाऊंगा. एक एक लाइन मतलब क्या है, रेक्टेंगल का विड्थ जब 0 हो रहा है मतलब वो एक लाइन बन गया, है ना. ऐसे लाइन से कवर करते जाऊंगा कंटिन्यूअसली तो मुझे मिल जाएगा पूरा एरिया. आ रहा है समझ में, ना. तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन. मतलब मुझे अगर मैं यहाँ पे एरिया निकालूंगा, मुझे अगर एरिया निकालना है तो मैं रेक्टेंगुलर कॉलम, है ना, जितना ज्यादा रेक्टेंगुलर कॉलम लूंगा उतना ज्यादा अच्छा है मेरे लिए. तो मतलब है ना सबसे ज्यादा एक्यूरेसी पूरा का पूरा एरिया मैं कब कैलकुलेट कर लूंगा, जब मेरा रेक्टेंगुलर कॉलम का जो विड्थ है वो नियरली इक्वल टू 0 होगा. तो फिर मेरा नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम्स कितना हो गया, वो हो गया इनफाइनाइट, वो हो गया अनडिफाइंड. ठीक है. तो मुझे ये पूरा x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b तक पूरा लाइन खींचते जाना है, पूरा है ना लगातार लाइन खींचते जाना है. अब मुझे पता नहीं है ना लाइन से मैं कवर कर लूंगा. अब अगर मैं उसको पूरा पार्ट को लाइन से कवर कर लिया तो मुझे सारा एरिया मिल गया, लेकिन मैंने कितने लाइन से कवर किया मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने कंटिन्यूअसली, वी हैव टू टेक कंटिन्यूअस लाइंस, है ना. सो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एडिशन विच इज इंटीग्रेशन. ठीक है ना. तो मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है. यहाँ पे एरिया क्या था, है ना, मैं बोलूंगा कि अप्रोक्सीमेट एरिया क्या था, अप्रोक्सीमेट एरिया, अप्रोक्सीमेट एरिया था, है ना, एरिया इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस आई डेल्टा एक्स 4 इंटू डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, है ना. लेकिन एग्जैक्ट एरिया क्या होगा, एग्जैक्ट एरिया इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0. मतलब मुझे जो रेक्टेंगुलर विड्थ है ना, उस रेक्टेंगुलर कॉलम है ना उसका विड्थ को मतलब है ना नियरली इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा. मतलब मेरा रेक्टेंगल लाइन के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना. मेरा रेक्टेंगल जो लाइन के बराबर हो गया और मैं ऐसे ऐड करते जाऊंगा, है ना, एफ ऑफ ए प्लस आई डेल्टा एक्स आया ना समझ, है ना. ठीक है. अब आई इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 नहीं होगा, आई इज इक्वल टू 0 टू समथिंग, मतलब वो इंफिनिटी हो जाएगा. ठीक है ना. तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी हम लिमिट नहीं, अभी हम है ना आई का मैक्सिमम वैल्यू नहीं लिख सकते क्योंकि मुझे कितना बार, मुझे कितना रेक्टेंगुलर कॉलम मुझे लेना है या फिर कितना बार मुझे ऐड करना मुझे पता नहीं है. अब मैं लाइन से भरते गया ना उस पूरे पार्ट को, जब मैं लाइन से भरते जा रहा हूँ तो है ना तब जाके ना मैं पूरा सारा एरिया कवर कर रहा हूँ, लेकिन कितने लाइन से पूरा का पूरा एरिया आ रहा है ना, वो तो अनकाउंटेबल है ना. So exact area is limit delta x tends to 0 summation of f of a plus I delta x into delta x. ठीक है ना. So that is equal to integration of f of x dx, है ना. So this is called integral of
एफ एक्स, इंटीग्रल एफ एक्स, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये जो पूरा पहला वाला पार्ट था समेशन, ये है डिस्क्रीट एडिशन, क्योंकि मुझे n नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स आई वाज एडिंग, n नंबर ऑफ टाइम्स, n इज अ फाइनाइट नंबर, है ना। लेकिन उसमें मुझे एरर मिल रहा था ना, उसमें मेरा एग्जैक्ट एरिया नहीं आ रहा था। सो बेसिकली दिस इज डिस्क्रीट एडिशन, है ना। इंटीग्रेशन, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स, दिस इज इंटीग्रेशन, और दैट इज आल्सो कॉल्ड कंटिन्यूअस एडिशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इंटीग्रेशन का मतलब समझ में आया बच्चों? Yes, sir. है ना। चलो अभी मैं तुमको इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला बता देता हूं। लेट मी टेल यू अबाउट सम फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ठीक है ना। सो चलो अभी मैं तुम लोग को कुछ इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूलाज बता देता हूं बच्चों। फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। जैसे कि पहला तो है ना 1, इफ, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, देन इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्टली लिखते हैं ना, डायरेक्ट फॉर्मूला तो एफ एक्स लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो मान लो आई टेक इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 by n plus 1, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, अच्छा प्लस सम कांस्टेंट, है ना। c इज कॉल्ड, मैं बताऊंगा c क्या है, दैट इज माइनस ऑफ cos x, सॉरी, दैट इज माइनस cos x प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना, sin x dx। नेक्स्ट इज integration of cos x dx, that is sin x plus constant. Next is integration of e to the power x dx, that is equal to e to the power x plus constant. Next is integration of 1 by x dx, है ना, that is equal to log x plus constant, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे n नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि n जब -1 है तो ये फॉर्मूला है, n जब -1 होगा तो वो हो जाएगा 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स dx इंटीग्रेट, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन जो है दैट इज log x, ठीक है ना। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो x टू द पावर n dx है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट -1, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, एक्सेप्ट -1। बस n का वैल्यू -1 नहीं होगा, क्योंकि जब n का वैल्यू -1 है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है log x,
1 by x है ना, x to the power minus 1 dx integration is equal to log x plus e ना. So these are the basic formulas for integration. है ना, ये बच्चों बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का. ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. है Sir. ना. अच्छा, चलो मैं इंटीग्रेशन का एक टेक्निक तुमको बताऊंगा, है ना. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना. फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन जो है दैट इज, है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड? ठीक है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, अब साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स प्लस, ठीक है ना. अगेन है ना, मान लो ये जो साइन 2x dx इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना. तो मिसकॉन्सेप्शन में हटा देता हूँ ना. अगर साइन एक्स dx माइनस कॉस एक्स प्लस सी है, एक्चुअली साइन ऑफ 2x, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ 2x, है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस 2x प्लस कांस्टेंट होगा ना c. अच्छा, ये जो c है यहाँ पे, c इज कॉल्ड इनिशियल कांस्टेंट. अब ये इनिशियल कांस्टेंट क्या है ना, जब हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे ना फिजिक्स में, तब इनिशियल कांस्टेंट क्या है हमको पता चलेगा. मतलब हम, है ना, हम पता कर पाएंगे कि इनिशियल कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, ओनली व्हेन वी सॉल्व प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स. ठीक है ना, तब हमें पता चलेगा कि ये इनिशियल कांस्टेंट क्या है. ठीक है ना. तो उससे पहले लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ, ये जो साइन 2x dx है ना, दैट कैन बी रिटन एज साइन 2x d ऑफ 2x, है ना. साइन 2x d ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x प्लस c. तो ये साइन 2x dx क्या होगा, है ना. तो इसको इवेल्युएट करने के लिए, है ना, हमें पहले ऐसे लेना पड़ेगा, लेट 2x इज इक्वल टू t. तो मैं 2x को t ले जाऊंगा, है ना. इंप्लाइज लेट 2x इक्वल टू t इंप्लाइज, है ना, इंप्लाइज d बाय dx, दोनों तरफ को मैं x से डिफरेंशिएट कर लूंगा, ऑफ 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx. दोनों तरफ को मैं, है ना, x से डिफरेंशिएट कर लूंगा ना, d बाय dx ऑफ 2x इज इक्वल टू dt अपॉन 2x. अगेन दैट इंप्लाइज 2 dx अपॉन dx, मतलब इंटू 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx, है ना. दैट इंप्लाइज है ना, आई कैन से दैट dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2. तो जब मैंने 2x इज इक्वल टू t लिया तो dx कितना आया, dt अपॉन 2. तो इंप्लाइज इंटीग्रेशन साइन 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x को मैंने लिया है t. अब ये जो dx है, दिस dx बिकम्स dt अपॉन 2. ठीक है ना. अब ये 1/2 कांस्टेंट है, ये आ गया बाहर, तो साइन t dt. अब साइन t dt में डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे कि साइन x dx क्या है, माइनस कॉस x प्लस c. तो साइन t dt क्या होगा, साइन t dt क्या होगा, माइनस कॉस t प्लस c, है ना. सो दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस t बाय 2. 1/2 तो था ही ना, माइनस कॉस t प्लस कांस्टेंट implies integration of sin 2x dx is equal to minus cos t by 2 plus constant implies integration sin 2x dx
इज इक्वल टू, ये जो t है, t का वैल्यू कितना है बच्चों? t का वैल्यू है 2x। t का वैल्यू कितना है? 2x, ठीक है ना? सो माइनस कॉस 2x बाय 2 प्लस कांस्टेंट, minus cos 2x by 2 plus constant. So that is my answer. तो अभी मुझे मेरा आंसर मिल गया है ना? ठीक है, अभी मिल गया मुझे मेरा आंसर। तो बेसिकली व्हाट इज माय आंसर? तो मेरा आंसर क्या है? तो बेसिकली माय आंसर इज, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x by 2 प्लस कांस्टेंट, है ना? ये हो गया आंसर। बच्चों समझ में आ गया? दिस इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना? तो कल टुमारो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ओवर, है ना? तो इंटीग्रेशन में हमको बेसिक मैथमेटिक्स में जितना इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ता है वो बेसिकली, है ना, उसका जो सिलेबस है वो डिफरेंशिएशन से बहुत कम है। तो मतलब बेसिकली कल ही हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? कल ही हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। प्लीज डोंट मिस टुमारोज क्लास बिकॉज I will be teaching you problem solving techniques in integration which is required in physics, just like integration by substitution method. I will tell you a variety of integration by substitution method, है ना? तो बेसिकली फिजिक्स में इंटीग्रेशन का एक टेक्निक यूज होता है बहुत रेगुलरली, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उसी को ही पढ़ेंगे कल, उसी के प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना? और वो कल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? सो प्लीज डोंट मिस द क्लासेस, है ना? चलो बच्चों, बाय बाय, क्लास इज ओवर, है ना? बाय सर। सबको समझ में आया ना? सबको समझ में आया? यस सर। भाई बोलने Yes, से पहले sir. ना समझ में आया कि नहीं बोल के जाओ, ठीक है? Yes, sir. ओके, देन बाय बाय। अभिनीत सर, सर क्लास इज ओवर नाउ। अभिनीत सर, क्लास इज ओवर नाउ। Hello, sir. यस सर।